Now student, today I am going to start the new chapter linear equation, linear differential equation with constant coefficients. इससे पहले हमने एक चैप्टर किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1. In that chapter we discussed differential equation of order 1 and degree 1. The differential equation of order 1, order is 1 and degree is 1. But in this chapter we will solve the differential equation whose order is greater than 1 but degree is 1. Order is greater than 1 but degree is 1. So because degree is 1, so therefore it is a linear differential equation. Also we have earlier discussed the linear differential equation means in which the differential coefficients जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं आर नॉट मल्टीप्लाइड with each other. So a linear differential equation of nth order is of the form p naught nth derivative of y with respect to x plus p1 n minus 1th derivative of y plus p2 n minus 2th derivative of y and so on plus p and y is equal to q. Here p naught is not equal to 0. बिकॉज अगर पी नॉट ही 0 हो जाएगा तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन फिर ये nth ऑर्डर की नहीं रहेगी. सो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने पहले बोला है कि दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज नॉन जीरो. हेयर पी नॉट p1 एंड p2 pn x q आर द फंक्शंस ऑफ x. लेकिन जब हम बात करेंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की, ये तो थी हमारे पास सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर की. लेकिन ये जो चैप्टर है दिस इज द चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट की बात करेंगे देन दीज पी नॉट p1 p2 pn आर दी कांस्टेंट. तो ये क्या बन जाएंगे कांस्टेंट. तो फिर ये x के फंक्शन नहीं हो सकता. ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द सिंबॉलिक फॉर्म. सो इफ वी टॉक अबाउट द सिंबॉलिक फॉर्म, सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज p नॉट d टू द पावर n इंटू वाई प्लस p1 d टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई p2 d to the power n minus 2 into y and so on. p n y is equal to q where d is equal to d by dx, d square is d2 over dx square, d3 d cube is d3 over dx cube and so on, and d to the power n is dn over dx to the power n. So this is the symbolic form, or we can write it as p naught dn plus p1 d to the power n minus 1 plus p2 d to the power n minus 2 and so on. pn y is equal to q. We can also write it as this one. So this is the polynomial, this is the polynomial of degree n in D. This is the polynomial with the degree n in D. Now अगर P नॉट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि P नॉट P1 P2 एंड Pn आर दी कॉन्स्टेंट्स, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. आल्सो
if q is equal to 0, then this differential equation is called homogeneous linear differential equation. If q is equal to 0 means p naught d to the power n, p1 d to the power n minus 1 and so on, pn y is equal to 0. So this differential equation is called homogeneous differential equation. If q is not equal to 0, then this is called the non-homogeneous linear differential equation. If it is 0, then it is called the homogeneous linear differential equation. And this polynomial, जो ये पॉलिनोमियल है p naught d to the power n plus p1 d to the power n minus 1 and so on pn, if this polynomial is equal to 0 means this equation is called the auxiliary equation. Very important, auxiliary equation. तो ये आपने कुछ डेफिनेशन बेसिक्स आप इसके याद रखने हैं. तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन की. तो नाउ वी विल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका एक वर्किंग रूल करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहां पे एक जनरल मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की, होमोजीनियस है क्योंकि q इज इक्वल टू 0 है. होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट मींस जो हमारे पास जो p नॉट है, p1 p2 एंड सो ऑन pn है, these are the constant. Now first of all we will write this differential equation in the symbolic form, so which is equal to p naught. So p naught d to the power n plus p1 d to the power n minus 1 plus p2 d to the power n minus 2 and so on pn y is equal to 0. So this is the symbolic form of the given differential equation. After that we will write the auxiliary equation. auxiliary equation लिखेंगे तो auxiliary equation क्या आ जाएगी, p naught d to the power n plus p1 d to the power n minus 1 p2 d to the power n minus 2 and so on pn is equal to 0. तो ये मेरे पास क्या आ गई, auxiliary equation. जैसा कि मैं तो ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि दिस इज दी पॉलिनोमियल, ये हमारे पास इक्वेशन है. तो जिसकी डिग्री क्या है n, तो इसके n रूट आएंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम n रूट आएंगे. तो डिफरेंट इसके रूट्स होंगे, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं. तो सपोज अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है, मींस ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है d में, पॉलिनोमियल है d में जिसकी डिग्री क्या है 3. तो अगर n की वैल्यू मैं 3 कंसीडर करूं और मेरे पास 3 रूट्स आ गए, अगर तो 3 के 3 रूट्स डिफरेंट होंगे और रियल भी होंगे. अगर m जो d की वैल्यूज है 3 रूट्स आ गए मेरे पास, ऑल आर डिफरेंट एंड रियल रूट्स, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू, जो इसका जनरल सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर m1x प्लस c2 e टू दी पावर m2x प्लस c3 e टू दी पावर m3x. x क्या है, ये मेरे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है. यहां पे अगर dn
जेड ओवर डी एक्स डी टी, अगर यहाँ पे x की जगह पे t आ जाए और y की जगह पे z आ जाए, देन फिर क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1t प्लस c2 e टू द पावर m2t एंड सो ऑन। तो ये तो सबसे पहले हमने बात की कि हमारे पास अगर रूट क्या आ जाए, डिफरेंट भी हो और अगर रियल भी हो। लेकिन अगर हमारे पास रूट्स आ जाए, रूट्स रिपीट हो रहे हो, सेम हो m1 और एक रूट डिफरेंट आ जाए, देन सोल्यूशन इसका क्या होगा, जनरल सोल्यूशन c1 e टू द पावर m3x, जो डिफरेंट है उसको पहले लिख लेंगे, जो रिपीट नहीं हो रहा, प्लस e टू द पावर m1x, अब जो रूट रिपीट हो रहा है c1 प्लस c2, क्योंकि c1 ऑलरेडी हमने लिख लिया है, c2 प्लस c3x मीन्स c1 e टू द पावर m3x प्लस c2 e टू द पावर m1x प्लस c3 x इंटू e टू द पावर m1x। लेकिन अगर हमारे पास ये रूट ऐसे आ जाता m1 देन y इज इक्वल टू e टू द पावर m1x c1 प्लस c2x प्लस c3। ओके, सिमिलरली अगर मेरे पास कोई रूट्स ऐसे आ जाएं, d की वैल्यू m1 m2 m3 मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने रूट आ गए, 6, तो इट मीन्स 6th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले जो दो रूट्स हैं e टू द पावर m1x, इसके रिगार्ड इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा c1 इंटू c2x, फिर ये जो सिंगल रूट है e टू द c3 e टू द पावर m2x, फिर ये जो रिपीटर रूट है 3 टाइम्स e टू द पावर m3x, c4 प्लस c5x प्लस c6x स्क्वायर। ओके, तो ये तो थे हमारे पास अगर रूट्स रियल हो। लेकिन अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास रूट कॉम्प्लेक्स भी आ रहे हैं, जैसे अगर d की वैल्यू मेरे पास आ गई अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, एज वी नो द कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा और एक रूट मेरे पास आ गया रियल, एक भी आ सकता है, दो भी रियल रूट आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल m1 m2 अगर दो आ जाते हैं, देन फिर कैसे लिखना है। तो अगर तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स रूट की बात करें, ये जो इमेजिनरी पार्ट है सबसे पहले आ जाएगा e टू द पावर अल्फा एक्स रियल रूट इंटू c1 कॉस बीटा एक्स, बीटा क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट, प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ रही है, y की। और जो रियल रूट आ रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर तो डिफरेंट है तो c3 e टू द पावर m1x प्लस c4 e टू द पावर m2x। ओके, अगर यही रूट मेरे पास ये वाले आ जाएं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा m1 कॉमा m1, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर अल्फा x प्लस इंटू c1 कॉस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x प्लस, अब ये वाला रियल रूट रिपीट हो रहा है तो e टू द पावर m1x इंटू c3 प्लस c4x। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीट हो रहे हैं, अगर कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीट होंगे अगर, देन सपोज d इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो एक रूट सपोज करो कि हमारे पास ये वाला रियल भी आ जाता है, तो y की वैल्यू e टू द पावर अल्फा एक्स, क्योंकि ये रूट रिपीट हो रहे हैं तो ये आ जाएगा कॉस बीटा एक्स इंटू c1 प्लस c2x प्लस साइन बीटा एक्स इंटू c3 प्लस c4x। और ये जो
अलग से एक रूट आ रहा है रियल, तो वो आ जाएगा मेरे पास C5e⁻mx। तो बाकी स्टूडेंट आप इसको एक बार नोट कर लो। बाकी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे देन आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म के बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसमें हमने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। बस उसके बाद आपने ये देखना है कि डी की वैल्यूज क्या आ रही है, रियल आ रही है या कॉम्प्लेक्स आ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उसका सोल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिख देना है। नाउ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है क्लियरली। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे P0, P1, P2, P3 दीज आर दी कॉन्स्टेंट, सो दिस इज द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। तो सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू डी क्यू प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म। उसके बाद एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या आ जाएगा, डी क्यू प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डी। नाउ वी विल सॉल्व इट एंड फाइंड दी वैल्यूज ऑफ डी। मीन्स जो इसके रूट्स आएंगे तो हमने रूट्स को फिर देखेंगे क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं या इमेजिनरी हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन लिख देंगे। तो यहां से हमारे पास डी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद डी प्लस 1 माइनस डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हमारे पास आ गई डी प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स डी प्लस 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे डी प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट डी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड माइनस 1। तो ये मेरे पास हमारे पास रूट्स आ गए ऑक्सिलरी इक्वेशन के, जैसा कि यहां से पता चल रहा है कि रूट्स हमारे पास रियल हैं। ये वाला रूट रिपीट हो रहा है माइनस वन और ये वाला रूट हमारे पास क्या है, सिंगल। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन लिखेंगे। सो जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 1 इंटू एक्स प्लस ये वाला रूट रिपीट हो रहा है e टू द पावर माइनस एक्स इंटू c2 प्लस c3x। सो दिस इज द सोल्यूशन। थर्ड ऑर्डर का था, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो कांस्टेंट में इसमें क्या आ गए, 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज solve the differential equation. First of all we will write it in the symbolic form dq plus 1 into y is equal to 0. Now auxiliary equation इसकी आ जाएगी dq plus 1 is equal to 0. Now we will solve it. So d plus 1 इसके फैक्टराइज किया इसको, तो d square minus d plus 1 is equal to 0. d is equal to minus 1. From this we will get d is equal to 1 plus minus 1 माइनस 4 ओवर 2। मीन्स डी की वैल्यू एक तो मेरे पास -1 आ गई और दूसरी वैल्यू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो एक रूट मेरे पास रियल आ गया और दो रूट्स हमारे पास क्या आ गए, इसके कॉम्प्लेक्स। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस जो रियल पार्ट है 1/2 अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास √3/2। तो e टू द पावर 1/2 इंटू एक्स c2 cos बीटा एक्स प्लस c3 साइन बीटा एक्स। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज solve the differential equation. This is the differential equation of order 4. First of all इसको symbolic form में लिखेंगे d4y plus 13 t square y plus 36 y is equal to 0. So d4 plus 13 d square plus 36 into y is equal to 0. Now अगर इसकी auxiliary equation की बात करें, so this is d4 13 d square plus 36 is equal to 0.
सो फैक्टराइज करेंगे इसको, डी स्क्वायर प्लस 4 एंड डी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद वी विल गेट डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा एंड प्लस माइनस 3 आयोटा। सो 0 मीन्स 0 प्लस माइनस 2 आयोटा, 0 प्लस माइनस 3 आयोटा। सो जनरल सोल्यूशन इज e to the power 0x c1 cos 2x plus c2 sin 2x and corresponding to this e to the power 0x c3 cos 3x plus c4 sin 3x. So this is the solution, general solution of the given differential equation. Now next is solve differential equation. नाउ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा d4 माइनस ए टू द पावर 4 y इज इक्वल टू 0। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d4 माइनस ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी माइनस ए इंटू डी प्लस ए, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So we will get d is equal to a minus a plus minus a iota. So general solution, complete solution is given by c1 e to the power ax plus c2 e to the power minus ax plus e to the power 0x because alpha is 0, real part is 0 into c3 cos ax plus c4 sin ax. So this is the solution, general solution of the given differential equation. Now next is solve d2x over dt square. So जितने भी हमने यहाँ पे प्रीवियस इससे पहले क्वेश्चन किए वहां पे था y ओवर x, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास x ओवर t। मीन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है यहाँ पे t। माइनस 3 dx ओवर dt प्लस 2x इज इक्वल टू 0 और यहां पे हमारे पास ये जो दो कंडीशंस गिवन है, ये कंडीशन हम लास्ट जनरल सॉल्यूशन में यूज करेंगे और वहां से हमारे पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी कांस्टेंट्स की। जितनी कंडीशंस हैं उतने कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। ओके, तो ये हमने बाद में यूज करनी है। सबसे पहले जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस में किया है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स माइनस 3dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप ध्यान रखने वाली ये बात है कि डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास t। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी आ जाएगी डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू यहां से 1 और 2 आ गई, बोथ आर रियल एंड डिफरेंट। तो जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू, बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल इज x, c1 e टू द पावर 1t c2 इंटू e टू द पावर 2t। अब इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है। अब ये कंडीशन यूज करेंगे। यहां पे क्या है, when t is equal to 0 x is equal to 1, यहां पे हमारे पास गिवन है x is equal to 1 when t is equal to 0। तो क्या करेंगे, t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। सो x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, c1 इंटू ई टू द पावर 0 प्लस c2 इंटू ई टू द पावर 0। तो यहां से हमारे पास c1 प्लस c2 की वैल्यू क्या आ गई 1। और हमारे पास कंडीशन गिवन है कि x डैश 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स dx ओवर dt की वैल्यू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो गिवन सोल्यूशन हमारे पास है, सॉरी जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो dx ओवर dt डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, c1 इंटू ई टू द पावर t प्लस 2c2 ई टू द पावर 2t। तो अब t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और dx ओवर dt की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो
t is equal to 0, dx over dt is equal to 0. We will get c1 plus 2 c2 is equal to 0. Now we will solve these two equation. Equation number 2, equation number 3. सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो c1 कैंसिल हो जाएगा. सो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1, c1 प्लस 2 c2 इज इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस c2 इज इक्वल टू 1. तो c2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1. अब c2 की वैल्यू -1 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. तो ये मेरे पास हमारे पास c1 और c2 की वैल्यूज आ गई. अब c1 और c2 की वैल्यू यहां पे जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया था यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है. तो x की वैल्यू हमारे पास सोल्यूशन जो इसका आ गया c1 2 इंटू ई टू द पावर t प्लस c2 की वैल्यू -1 इंटू ई टू द पावर 2t. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये 3 कंडीशंस गिवन है. ये कंडीशंस हम बाद में यूज करेंगे आफ्टर फाइंडिंग जनरल सॉल्यूशन. नाउ सबसे पहले हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. तो सिंबॉलिक फॉर्म की बात करें d3 माइनस 6d² प्लस 11d माइनस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी d³ माइनस 6d² प्लस 11d माइनस 6 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे. वैल्यूज यहां से हमारे पास आ जाएंगी d की वैल्यू 1, 2 एंड 3. और इसका जो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा c1 इंटू ई टू द पावर x, c2 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस c3 इंटू ई टू द पावर 3x. नाउ 1 बाय 1 अब इसका क्योंकि जनरल सोल्यूशन आ चुका है नाउ वी विल यूज दीज कंडीशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल y इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 मीन्स c1 प्लस c2 प्लस c3 इज इक्वल टू 0. सो जनरल जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको 1 लेट कर लिया. सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन को 2. ये थर्ड इक्वेशन होगी. अब सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड कंडीशन. उसके लिए इसका डिफरेंशिएट सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे. तो यहां से मेरे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू c1 ई टू द पावर x 2 टाइम्स c2 ई टू द पावर 2x प्लस 3 टाइम्स c3 ई टू द पावर 3x. नाउ यूज द कंडीशन x इज इक्वल टू 0, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0. सो यूज करेंगे तो यहां से आ जाएगा c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 इज इक्वल टू 0. सो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई. अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2 है व्हेन x इज इक्वल टू 0. अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. d2y ओवर dx² इज इक्वल टू c1 ई टू द पावर x 4c2 ई टू द पावर 2x प्लस 9c3 ई टू द पावर 3x. तो कंडीशन में वैल्यू इसमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कंडीशन से. x की वैल्यू 0, d2y ओवर dx की वैल्यू क्या आएगी? 2. तो यहां से मेरे पास आ गया c1 प्लस 4c2 प्लस 9c3 इज इक्वल टू 2. नाउ अब थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ को सॉल्व करेंगे. आफ्टर सॉल्विंग आप जैसे भी सॉल्व करना चाहते हो उसको सॉल्व कर सकते हो. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट c1 इज इक्वल टू 1, c2 इज इक्वल टू -2 एंड c3 इज इक्वल टू 1. नाउ we will put these values in the general solution. So y is equal to c1 की वैल्यू 1 e to the power x, c2 की वैल्यू -2 e to the power 2x, c3 की वैल्यू 1. तो 1 यहां पे सब्स्टिट्यूट किया गिवन जनरल सोल्यूशन में 1 इंटू सो e to the power 3x. सो ये हमारे पास क्या आ गया? सोल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. नाउ स्टूडेंट सॉल्व the homogeneous linear differential equation. In the next video we will start non-homogeneous linear differential equation.